سب کے ساتھ ہو۔ زبور 121 اور کلام پاک میں یوں مضمون ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری قوت کہاں سے آئے گی؟ میری قوت خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگے گا نہیں۔ دیکھ، اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ مہتاب رات کو۔ خداوند ہر بات سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہے ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آج کی صبح میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ سب خدا کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے ہم اپنی عبادت کا آغاز دعا سے کریں، اور میں چاہوں گا کہ کوئی بھی شکر گزاری کی دعا سے جو ہے اس کرے آغاز اس عبادت کا۔ اور آج کی خاص عبادت میں ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا جو رشیا اور یوکرین کی بیچ میں تنازع چل رہا ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میری درخواست ہے آپ سے کہ اس کو بھی دعاؤں میں آپ یاد رکھیں کہ جہاں پہ جنگ و جدل ہے وہاں پہ خدا جو ہے امن اور سلامتی قائم کرے۔ ابھی موقع ہے کہ کوئی بھی دعا کرے۔ ہم پر رحم کرتا ہے، ہم پر ترس کھاتا ہے۔ تیری تمام دینی نعمتوں برکتوں بخشوں کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس زندگی کے لیے، ان سانسوں کے لیے جو تیری طرف سے امانت ہے۔ اس وقت ہم جتنے لوگ بھی تیرے حضور میں آ چکے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو تیرے قدموں پر جھکاتے اور تجھے سجدہ تعظیم پیش کرتے ہیں۔ آج کی عبادت کا آغاز تیرے پاک نام سے کرتے ہیں۔ عبادت کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا ہادی اور رہنما ہونا۔ جتنے لوگ بھی تیرے حضور میں شامل ہوئے ہیں، ان سب کے لیے، ان کی موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی مستعش کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے لیے جس نے ہم سب کی خاطر اپنی جان سلیب پر دی اور اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے۔ ہاں خداوند، ہم جانتے ہیں ہم کمزور ہیں، نادان ہیں، ہماری زندگی میں بہت ساری کوتاہیاں، نادانیاں اور بیوقوفیاں پائی جاتی ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، تجھے دکھ بھی دیتے ہیں، ہماری روشوں سے تجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن تیرا کلام فرماتا ہے کہ اے خداوند مجھے اپنی شریعت سکھا تاکہ میں اپنی روشیں ٹھیک کر سکوں۔ تو ہماری روشوں کو ٹھیک کرنا، ہمارے چال چلن کو ٹھیک کرنا، ہمیں صحت دے، تندرستی دے، اپنا ڈر اور خوف دے۔ جتنی زندگی ہمیں زمین پر دیتا ہے، ہم اپنے سے دوسروں کو بہتر جانیں، اپنے بڑوں کی عزت کریں، احترام کریں، اپنا ڈر اور خوف دے تاکہ تیرے کلام کے مطابق ہم اپنی زندگیاں بسر کریں۔ ہماری زندگی سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ ہمارے منہ سے نہ نکلے جس سے تیرے نام کو ٹھیس پہنچے۔ تیرے بندہ کے لیے، آپ کی سشیل کے لیے تجھ سے دعائیں خیر مانگتی ہوں، اپنے بچے کو اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا، جب تیرا پاک کلام پیش کرتا ہے، جب اس میٹنگ کو پریزائڈ کرتا ہے، اس کی بڑی رہنمائی کرنا، سر سے لے کے پاؤں تک اسے چھونا اور پاک کرنا۔ تیرا پاک روح یہاں پر جنبش کرے اور ہم تیرے پاک روح کے وسیلے سے آگے بڑھتے جائیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بنے۔ آج صبح کی تو ہماری شکر گزاری کو اپنے حضور مقبول ٹھہرا، ہماری دعا کو سن، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے کلام یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آمین۔ تو میں بتاتا چلوں کہ آرچ بشپ آف کینٹربری دراصل پاکستان آئے ہوئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہمارا چرچ آف پاکستان ہے، ڈائسس آف پرائیویٹ ہے، باقی جو ڈینومینیشنز ہیں، ان کے ساتھ میٹنگ چل رہی ہے، اور آج شام میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑی انٹرفیتھ کی کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس کے اندر پادری صاحب جو ہیں وہ شامل ہونے کے لیے صبح ہی نکل گئے تھے۔ تو ایک تو اب جو اگلی دعا ہوگی اس کے اندر ہم نے بشپ آف کینٹربری جو آئے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ خدا سارے جو ان کا پروگرام ہے ادھر پاکستان میں وہ بالکل سلامتی کے ساتھ سر انجام جو ہے پروگرام ہو، اور جو انٹرفیتھ کی کانفرنس میں بات چیت کی جاتی ہے ہمارے مسیحیوں کے لیے، وہ بھی جو ہے اچھے طریقے سے بات کی جائے، اور جس پلیٹ فارم پہ کی جا رہی ہے اس کے تھرو جو ہے کچھ اچھی جو خبر ہے وہ ہمارے لیے آئے۔
تو میں چاہوں گا کہ کوئی بھی آپ میں سے دعا کر سکتا ہے، ایک تو آرچ بشپ صاحب کے لیے اور سارے اس پروگرام کے لیے، پادری صاحب کے لیے جو اسلام آباد گئے ہیں، چرچ پاکستان کے لیے اور چرچز ان پاکستان کے لیے خاص کر. اور دوسرا میں درخواست کرنا چاہوں گا کہ دعاؤں میں ہمیں اپنے جو لوگ کمزور ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند اپنا شافی ہاتھ بڑھا کر ان کو جلدی صحت یاب کرے. قدوس قدوس مقدس پاک جلالی خداوند، تو رحیم ہے، فضل کرنے والا خدا ہے، تو دنیا جہان کا خالق و مالک، پیدا کرنے والا روزی رساں ہے. تمام طریقے تیرے لیے ہیں. تیرا شکر جاتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام بڑی برکات کے لیے جو تو نے ہمیں مانگے بغیر بخشی. سب سے بڑھ کر تو نے اپنا زندہ کلام بخشا، اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ اپنے ملک میں بے شک زندگی پائیں. پاک جلالی خداوند، تیرا شکر جاتے ہیں تیرے بندہ بشپ صاحب کے لیے جو خداوندہ اس وقت پاکستان میں آئے ہوئے ہیں. خداوندہ ان کی سلامتی چاہتے ہیں، وہ جہاں کہیں بھی جس پروگرام میں بھی جاتے ہیں ان کو برکت دینا. جو فیصلے بھی وہ خداوندہ کریں وہ ہماری قوم کے لیے باعث برکت ہوں. ہم تیرے نام میں بڑھتے جائیں. پاک جلالی خداوند، تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں تیرا شفا والا ہاتھ چاہتے ہیں، ان کو چھونا اور شفا دینا تاکہ وہ تیرے نام کی گواہی دیں. پوری دنیا میں خداوندہ امن صلح و سلامتی بخش دے. خاص طور پہ روس کے لیے اور یوکرین کے لیے جو جنگ کے لیے ہے، وہاں پہ جو اپنا امن والا ہاتھ بڑھا، وہاں پہ امن ہو، صلح و سلامتی ہو. اسی طرح ہمارے ملک میں بھی سلامتی بڑھ کے حتیٰ کہ دہشت گردی، شیطان کی چلاکی، کرپشن، بیماریاں تیرے نام سے جاتی گئیں. جو لوگ اس وقت خداوندہ تیرے گھر میں موجود ہیں، ایک ایک کے لیے برکت چاہتے ہیں. ہماری سب کی خطائیں، گناہ، غلطیاں میں بخش دے. یہ سب کچھ مانگ کے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. پہلا جو ورد ہے وہ پہلا تسلیکیوں اور اس کا 5واں باب پہلی 10 آیات. پہلا تسلیکیوں 5واں باب پہلی 10 آیات. اور دوسرا جو ورد ہے، جو تلاوت ہے، وہ مقدس مرکز کی لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب اور پہلی 8 آیات. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 13واں باب پہلی 8 آیات. پہلی تلاوت جو کہ پہلا تسلیکیوں میں سے ہے، کون تلاوت کرنا چاہے گا؟ ٹھیک. اور جو دوسری تلاوت ہے مقدس مرکز کی انجیل، اس کے لیے کون تلاوت کرے گا؟ کوئی ہے؟ ٹھیک ہو. اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں سے جو ہماری نصیحت کے لیے ورد ہیں وہ ہم سماعت فرمائیں. کچھ ضروری اعلانات ہیں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. پہلا تو یہ ہے کہ اگلے سنڈے جو ہے رفاقت خواتین نے ون ڈش پارٹی منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس کے اندر شرکت کریں اور اپنی فیملی کی طرف سے جو کچھ آپ بنانا چاہتے ہیں، بنا کے لے کے آنا چاہتے ہیں. چرچ کے بعد برائے مہربانی وہ جو اپنے نام ہیں وہ مسز نظر کو آپ لکھوا لیں. پھر سے اگلے سنڈے ون ڈش پارٹی جو ہے وہ رفاقت خواتین آرگنائز کر رہی ہے اور آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں، اپنی فیملیز کو لے کے آئیں، کچھ بنا کے لے کے آئیں کھانا، تاکہ آپ سب کے ساتھ شراکت رکھ سکیں. اور اپنے نام جو ہے وہ مسز نظر کو چرچ کے بعد آپ پلیز لکھوا دیں کہ آپ کیا بنا کے لے کے آئیں گے. اور دوسری اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ جیسے رات کا بدھ ہے 2 مارچ کو، بدھ کا دن، اس کی عبادت جو ہے 5 بجے ادھر اسی چرچ میں یہاں پہ منعقد کی جائے گی. آپ بھی آئیں، اپنے خاندان کو لے کے آئیں. روزوں کے ایام کا آغاز ہونے لگا ہے. اس کے لیے آپ خود بھی انفرادی طور پر بھی دعا کرتے رہیں، اجتماعی طور پر بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سارا جو روزوں کے ایام ہے خدا اس میں ہم سب کو برکت دے، سلامتی بخشے، حالات کو کنٹرول میں رکھے. کیونکہ جس طرح ارد گرد اپنے دیکھ رہے ہیں کہ حالات ابھی کافی جو ہے وہ
संगीन होते जा रही हैं। तो इसके लिए आप सबसे दरख्वास्त है कि इनको अपनी पर्सनल जो प्रेयर आप करते हैं उसके अंदर भी इन चीज़ों को याद रखें और चर्च के अंदर भी आए तो इधर भी आप जो है इन चीज़ों को याद रखें। तो अब मैं चाहूँगा कि हम तिलावत सुने। पहला तस्सलीकियों उसका 5 बाब और पहली 10 आयात। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, मगर ऐ भाइयों, इसकी कुछ हाजत नहीं कि वक्तों और मौक़ों की बाबत तुमको कुछ लिखा जाए, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नागहां हलाकत आएगी जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं, और वो हरगिज़ ना बचेंगे। लेकिन तुम आए भाइयों, तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम न रात के हैं न तारीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत और बख्तर लगाकर और नजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें, क्योंकि खुदा ने हमें गज़ब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से नजात हासिल करें। वो हमारी खातिर इसलिए हुआ कि हम जागते हों या सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा सुना देना हम सब के बायस से बरकत हो। आमीन। यूँ लिखा है, जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देखिए कैसे कैसे पत्थर और कैसी कैसी इमारतें हैं। यीशु ने उससे कहा, तो उन बड़ी बड़ी इमारतों को देखता है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। जब वो जैतून के पहाड़ पर हैकल के सामने बैठा था तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और इंद्रजास ने तन्हाई में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने को हों उस वक़्त का क्या निशान है। यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना कर दे। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि वो मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, इनका वाक़या होना ज़रूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। जगह जगह बदशाह आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होगा। और हम उनका पाक कलाम पढ़ा और सुना देना हम सबके लिए बात सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु पर, जो कुदरत की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी ज़मीन से पैदा हुआ। मैंने उससे पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आदमी अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक के नीचे में बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान करता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म से जी उठने और हमेशा के लिए ज़िंदगी। आमीन। बैठ जाइए।
कलाम के लिए तैयार करें। दुआ करें। कदूस बाप आसमानी, तेरा खादिम होते हुए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि आज तूने ये फजीलत बख्शी कि एक बार फिर मैं इस पाक में इसके पास आके जो तूने कलाम दिया है तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। अपने खादम की तकदीस फरमा, अपने खादम की ज़ुबान, होठों, सोचों, ख्यालों की तकदीस फरमा, और जो कुछ खुदा तू कहना चाहता है तो अपने लोगों से बोल और इनके ज़हन नशीन कर जो कलाम की शीरी बातें। ये सब कुछ मांगता हूँ इसी यीशु के कादिर नाम में, आमीन। आज क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ, और ये जो तालीम है ये मेरे ख्याल में चलती रहनी चाहिए। एक सेहतमंद इंसान की जो सोच है वो हमेशा जो है वो रिवाइज होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, सीखना चाहिए उससे कुछ ना कुछ। तो 2-1 दिन से जब मैं ये तैयारी कर रहा था मुझे पता चला कि बड़े पाक साहब जो हैं वो संडे को नहीं होंगे और कलाम का मौका मुझे मिला है, तो मैं 2-1 दिन से तैयारी कर रहा था। तो ये टॉपिक जब भी मैं सेमिनरी में भी होता था, यूनिवर्सिटी में भी होता था, तो इस टॉपिक को मैं देखता तो बहुत मुश्किल होता था मेरे लिए इस टॉपिक को समझना और सोचना। अभी जो 2 तिलावत जो विर्द किए गए हैं इनके अंदर आपको कुछ नजर आ रहा होगा, कुछ महफूम जो मैं आज आपसे बयान करना चाह रहा हूँ। और कुछ इबादत के आगाज में भी मैंने आपसे कहा था कि आज की जो इबादत है, आज का जो पैगाम है, मैं रशिया और यूक्रेन जो जंग और तनाज़ा चल रहा है मैं उनको नजर करना चाहूँगा। तो इसके अंदर भी अगर काफ़ी लोगों के पास ये बाइबल जो है इसका नया एडिशन हो तो उसके ऊपर भी हेडिंग्स आ जाती हैं। तो जो मुकद्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील है उसके अंदर भी जो है हमने ये 13वां बाब पहली 8 आयत की जो तिलावत है वो सुनी और जो आप देख भी रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको हेडिंग्स नजर आ रही होंगी कि पहली 2 आयत के ऊपर जो हेडिंग है वो है यीशु हैकल की बर्बादी की पेशगोई करता है, और दूसरी आयत के बाद फिर एक हेडिंग है मुसीबतें और अज़ियतें। और जिस तरह मैंने लास्ट टाइम आपसे दरखास्त की थी कि जब मैं कलाम मेरा थोड़ा स्टाइल, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इंगेज करें, मुझे बताते रहे, मुझे आवाज़ आती रहेगी तो मैं जानूंगा कि आप लोग मेरी ऐसी है वो सोई नहीं हुई, वो जाग रही है, कुछ सुन रही है, तो शायद कुछ समझ के लिए भला हो जाए आप लोगों का, मेरा भी भला हो जाए, साथ साथ मैं भी सीख रहा हूँ। तो जब मैं ये टॉपिक कर रहा था, इसको थियोलॉजी की लैंग्वेज के अंदर जो अज़ियतें और मुसीबतें हैं इनका एक स्पेशल एक अलग एक सब्जेक्ट है। थियोलॉजी के अंदर भी डिफरेंट फील्ड शुरू हो जाती हैं, जिस तरह साइंस के अंदर डिफरेंट फील्ड है, बायो की फील्ड है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, लेकिन कहते हैं साइंस ही है। इसी तरह इल्म इलाहियात में थियोलॉजी के अंदर भी ये जो चीजें हैं इनके लिए एक अलग फील्ड एक सब कैटेगरी है, उसको एस्कटोलॉजी बोलते हैं, एस्कटोलॉजी। और एस्कटोलॉजी ऐसा टॉपिक है जिसका जो मफहूम है, जो मतलब है वो है एंड ऑफ टाइम्स, आखिरी अयाम। कि आखिरी अयाम किस तरह होंगे, क्या होगा, क्या निशानियां होंगी, कब और कैसे वाक़या होगा, हम क्या कर रहे होंगे। तो ये जो टॉपिक है ये काफी समझे अपने अंदर काफी एक डीप टॉपिक है। इसको समझने के लिए भी आपको जो है समंदर की गहराई तक उतरना पड़ता है एकदम। तो मैं 2-1 दिन से जब ये तैयारी कर रहा था तो मैं अभी भी घर वालों से मैं कह रहा था कि यार मैंने टॉपिक बड़ा ही मुश्किल जो है ना लिया है, और आज के हालात और सपनात को देख के मेरा जो है मूड भी था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर आप सबसे जो है मुखातिब हूँ, आप सबसे कलाम शेयर कर सकूँ। ये जो एस्कटोलॉजी की फील्ड है एंड ऑफ टाइम, जिसके अंदर जब ये हमने जैसे हेडिंग्स भी देखी हैं कि मुसीबतें और अज़ियतें, और जो थेसलोनियों का हमने पढ़ा, थेसलोनियंस और इंग्लिश में कह रहा हूँ थेसलोनिकियों, उसके अंदर जो है वो इसका सेकंड पार्ट है, क्योंकि हम जो नया इकनॉमिक किताब है वो बाद में करते हैं तो इसलिए, लेकिन वो अब कलाम जब मैं आगे जो है शेयर करूंगा आपके साथ तो उसको मैं उसकी कंटिन्यूएशन में आपको बता दूंगा, साथ जुड़ जाएगी। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हालात आजकल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली अगर हम देखें, गौर करें तो हालात ज़्यादा दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, बल्कि सही नहीं हो रहे, बिगड़ते जा रहे हैं। और कलाम की बातें हमें फिर याद आती हैं उस टाइम कि निशानियाँ होंगी, आखिरी अयाम होंगे। तो सुनते तो हम शुरू से हैं, इंसानी फितरत है कि हम जो
चीज़ें सुनते हैं ना कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो कोई ज़्यादा गौर नहीं करते कि चीज़ सुनी है ना, देखी थोड़ी है, ऐसे कहीं हुआ है, कहीं होगा, देखी जाएगी जब होगा। अब निशानियाँ जो है, वो निशानियाँ कितनी किस्मों, कितनी चीज़ें हैं, रोज़ अयाम, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके अंदर कितने निशान होते हैं, शायद हम नहीं देखते या भूल जाते, या कभी हमें इनकी बड़ी अशद ज़रूरत होती है जिस दिन, उस दिन हमें याद आता है यार शायद मैं कल परसों उधर से शायद गुजरा था, कोई चीज़ मैंने मार्क की थी, शायद इस गली में जाना था, ये गली नंबर था, मैंने इस रोड पर जाना था, इसकी कोई निशानी रख लेता हूँ, मैं कल गुजरूंगा, या शायद गुजर गया मुझे याद नहीं रही तो मैं याद रख लेता हूँ। तो ये जो निशानियाँ ना, ये बड़ी मुफीद चीज़ें हैं अपनी लाइफ को भी नेविगेट करने के लिए, आपकी रोज़मर्रा जो रूटीन है उसको भी नेविगेट करने के लिए, और मसीह की जो आमद सानी है उसके लिए भी। तो ये निशानियाँ आप देखने के आज से आप 10-15 साल पीछे अगर आप चले जाएं, बल्कि उससे भी अगर पीछे आप चले जाएं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं तो बता सकते हैं आपको बखूबी कि जंगें थोड़ी कम थी, हालात थोड़े ठीक थे, इतने बॉर्डर्स वगैरह नहीं थे जो मुल्कों के आपस में बॉर्डर्स होते हैं। उसके अलावा ज़लज़ले और कहत भी इतनी संगीनी से नहीं आते थे जितने अब हो रहे हैं। अब तो रोज़ आप कोई टीवी चैनल लगाते हैं तो आपको पता चलेगा जी इस मुल्क में कहत साली हो गई है, कहत पड़ गया, अनाज नहीं उगा पा रहे, भूख से इतने लोग जो हैं वो मर गए हैं, ज़लज़ले कितने आ रहे हैं, पहले इतने ज़्यादा नहीं आते थे अब, लेकिन जिस तरह टाइम गुजर रहा है ज़लज़लों की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, और उनका जो टाइमिंग है वो भी जल्दी, मतलब वो उसको आप जो उसकी पेश कोई नहीं कर सके। अभी तक कोई साइंसदान इस तरह की कोई फार्मूला या मशीन नहीं दरियाफ्त कर सके जो बता दे कि ज़लज़ला किस टाइम और कितनी शिद्दत से आ सकता है। ये बता सकते हैं कि आया था, इतना रिकॉर्ड किया गया रेक्टर स्केल पर। हमारे पाकिस्तान में भी आया था काफ़ी बुरा, जब ये बालाकोट वगैरह कश्मीर साइड पे काफ़ी नुकसान हुआ था। तो ये कुछ निशानियां हैं किसके तरफ हमें इशारा दे रही हैं, ये मसीह की आमद सानी की तरफ हमें इशारा दे रही है। मसीह की आमद सानी के बारे में तो भी जो है हम काफ़ी देर से ठीक है जी मसीह ने आना है, ठीक है देखी जाएगी, अभी तो टाइम है, क्या टाइम है, कौन सा टाइम है ये नहीं पता। वो लिखा जो बातें बाइबल में लिखी हैं, अब इसको भी वो कुछ दोस्त हैं मेरे, वो बड़े साइंटिफिक हैं, वो नहीं ज़्यादा बाइबल को चीज़ें मानते। मैं उनमें गुनाहगार सा बंदा, मैं बाइबल का स्टूडेंट भी हूँ, मैं उनके साथ जब शेयर करता हूँ तो कहते हैं यार वाकई आप जो बाइबल कह रही है वो वाकई सच कह रही है, ठीक कह रही है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं। अब पहले भी मैं एक दोस्त के साथ बैठा शेयरिंग कर रहा था कि यार ये जंगो जंगल का जो है कभी इस तरह सुना नहीं था कि इतनी शिद्दत के साथ एकदम से ही कौमें पर चढ़ाई करती हैं। हाँ सुना था, क्या करेंगे यार, देखेंगे क्या है, लेकिन आज हम वो चीज़ें देख रहे हैं। तो जो नहीं मानते इस बाइबल को वो भी मानना शुरू कर रहे हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि ये जब तक मसीह की आमद होगी, जब मसीह आएगा अपने जलाल के साथ, तो जो बाइबल है खुदा का कलाम है, ये दुनिया के कोने कोने तक और हर इंसान तक ये पहुंच चुका होगा। तो आइए हम देखते हैं कि पाक कलाम में हमारे लिए क्या लिखा है। मुकद्दस मरकज़ की इंजील में मैं सारा नहीं, क्योंकि वक्त की नज़ाकत की वजह से मैं सिर्फ शॉर्ट आपको बताना चाहूँगा कुछ इसकी खास जो आयात हैं। और इसमें लिखा है कि यीशु ने उनसे कहना शुरू किया कि खबरदार कोई तुमको गुमराह न करे, बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाहें सुनो तो घबरा ना जाना, उनका वाक़ होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह पहुंचा लाएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। अगर हम 13वां बाब देखते हैं मुकद्दस मरकज़ का, और इससे पहले भी हम अगर टेक्स्ट पढ़ें और जो लिखा हुआ है, इसके अंदर यीशु मसीह की
بات چیت چل رہی ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ، اور شاگرد یسوع مسیح کو ہیکل دکھاتے ہیں. اس ٹائم جو یہودی کلچر تھا اس کے اندر ہیکل کو بہت ایک بڑا بہت مقدس مقام حاصل تھا. ابھی بھی بہت وہ کرتے ہیں مقدس مقام ہے ہیکل، لیکن اس ٹائم کیونکہ وہ بہت مہنگی چیزوں سے اس کی تزئین و آرائش کی جاتی تھی، مہنگے پتھر لگائے جاتے تھے. تو وہ کنورسیشن، وہ بات چیت آپس میں ہو رہی ہے شاگردوں کی اور یسوع مسیح کی. وہ شاگرد پوچھتے ہیں کہ کیا ہمارے لیے نشانیاں کیا ہوں گی کہ یہ ہیکل گرائی جائے گی، کیا مطلب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو یسوع مسیح کی ٹیچنگ اتنی افیکٹو تھی کہ جو تمثیل یسوع مسیح بیان کرتے تھے، جو باتیں کرتے تھے، وہ اس کانٹیکسٹ، وہ اس علاقے کی جو بات چیت، مطلب جس طرح ہم ایک عام لینگویج میں بات کرتے ہیں، جیسے ہماری اردو لینگویج ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں، وہ اتنی افیکٹولی بیان کرتے تھے کہ کوئی میرے جیسا کم پڑھا لکھا جس کو نہیں سمجھ آتی اس کے سر سے گزر جاتی ہوگی. تو اس کے اندر بھی شاگرد جو ہیں وہ یسوع مسیح سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں تو آپ کو نشانی دے، ایسی ہو جائے گا، کیا ہوگا. ہمیں بھی آج کہیں یار باہر بارش ہو رہی ہے، کہیں گے یار کیا بارش ہو رہی ہے، باہر پانی نہیں کھڑا، یار چائے بول کے جا کے یار ابلے گی تو آواز آ جائے گی، گر جائے گی چولہے کی تو آواز آئے گی. اس طرح کی نشانی. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اب یسوع مسیح فوراً اس وقت کے حوالے سے ہم کو بتا رہے ہیں کہ آگے ان قریب کیا ہونے والے ہیں، اور دوسری بات کہ اگلے ایام میں، مطلب فیوچر میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اب جو ان قریب ہے اس کے لیے تو بات پوری ہوتی کہ ہیکل جو ہے وہ تقریباً 70 قبل جو ہے 70 سال بعد جو ہے یسوع مسیح کی بات جو ہے وہ گرائی گئی تھی. یروشلم کی جو ہیکل تھی اس کو 2 دفعہ گرایا گیا، ایک کافی پہلے اور ایک بعد میں، اور ابھی تک وہ ہیکل تعمیر نہیں ہو سکی. اور یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ اب ہیکل کدھر ہے، کدھر ہے، اندر. اب آپ کیا اسی کو کہا تھا کہ ہیکل گرائی جائے گی، میں 3 دن میں کھڑا کر دوں گا. اور جو شریعت ماننے والے تھے، جو ٹھیکیدار تھے، لیڈر تھے، اس نے کہا یہ کس طرح کی بات کری، اتنے سال لگے ہیں ہیکل بنانے میں، یہ بندہ کہہ رہا 3 دن میں بنا دے. نشانیاں نہیں سمجھ رہے تھے کہ کیا بات کہنا چاہ رہی ہے یسوع مسیح. یسوع مسیح نے تو گناہ پر، شیطان پر، موت پر، قبر پر جو ہے وہ فتح حاصل کی. 3 دن مردوں میں سے جی اٹھ گیا، آسمان پر چڑھ گیا، باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جو زندہ مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا. سمپل ہر دفعہ عقیدہ پڑھتے ہیں لیکن نشانیاں بھی نہیں دے سکتے، اس میں سے نہیں سمجھ. انسانی فطرت ہے نا، کچھ چیز دیکھیں گے سمجھ آئے گی. آج کل وہ آن لائن کا دور ہے، آن لائن آپ چیزیں منگواتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، چیز بس تصویر اچھی لگی ہے، یہ ہم نے یہ منگوا لیا، یہ پارسل آ رہا ہے، پارسل دیکھیں اندر سے چیز نہیں ہوتی، فرق ہوتی ہے. تو دیکھنے سے نا ہم انسان ہے، ہم سننے بھی اور دیکھنے سے بھی دونوں چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو اب جو حالات چل رہے ہیں رشیا اور یوکرین کے، کیوں جی چل رہے ہیں، کیا بات ہے. لکھا ہے دیکھیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، جگہ جگہ پہنچا لائیں گے اور کال پڑیں گے. یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. جنگ شروع ہو گئی ادھر بھی، نیچے آپ کے فلسطین وغیرہ، لبنان، ادھر بھی حالات کشیدے ہیں. ایران میں دیکھ لیں، عراق میں دیکھ لیں، افغانستان میں دیکھ لیں، حالات کشیدے ہیں. قحط پڑا ہوا ہے. وہ کریں، گوگل کریں، اب سب کے پاس موبائل ہے، گوگل پہ دیکھیں، لکھیں ذرا فیمن قحط سالی لکھیں، کتنے ممالک بتا دے گا. پرتگال دیکھیں، اتنا حسین ملک ہے، اچھا ملک ہے. ادھر پاکستان ہے انگوروں کے، بڑی انہوں نے اپنی کی، لیکن ادھر قحط سالی ہے. اٹلی ماڈرن ملک، اس کے اندر قحط سالی ہے. افریقن کنٹریز دیکھ لیں، قحط سالی ہے. پھر آپ ادھر ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی طرف آئیے، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان وغیرہ، ادھر آ کے دیکھیں، پوچھیں ذرا، ادھر گوگل میں لکھ کے ذرا سرچ کریں کہ کتنے جو ہے وہ یہ زلزلے آتے ہیں اور کتنی شدت کے آتے ہیں. تو یہ نشانی ہے جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک امید ہمیں یسوع مسیح نے اس کلام کے اندر بھی نظر آتی ہے اور ہمیں دی ہے، اور لکھا ہے کہ یہ باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی. یعنی کہ کچھ ٹائم شاید ابھی ہمارے پاس ہے، شروع ہی ہے نا، ابھی سٹارٹنگ ہے، ابھی تو
पार्टी आगे चलेगी। ठीक, अब स्टार्ट है, देखते हैं। फिर अगर हम देखें कि अगर ये शुरू है तो अपने आप को हमने क्या करना, क्या तैयारी कैसे करें। ठीक है जी, निशानियां भी देख ली है, मान भी ली है बाइबल में जो लिखी, तो आगे क्या करें, तैयारी क्या करें, पाकिस्तान को बताएं। जो शेल्टर बना लेते हैं, खाना पीना कोई रख लेते हैं, कभी ज़लज़ला है, जंग हुई तो शायद भाग जाएंगे, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। तो तैयारी ये नहीं करनी है। तैयारी आपने कहा से क्या करनी है, अपने आप को अपनी जो है वो दुरुस्त करना है, अपनी रविशों को दुरुस्त करना है। जो यीशु मसीह ने रास्ता बताया, जो दिखाया, उसके ऊपर चलना है। तो ये जंगो जदल सिर्फ मुल्कों में और सल्तनतों में नहीं है आजकल, ये तो हमारे दारों के अंदर आपस में एक दूसरे के साथ घरों के अंदर है। छोटा भाई कहता है भाई मैं तेरे से बड़ा हूं, बड़ा कहता नहीं भाई मैं बड़ा हूं, मैं मेरी बात मानी जाएगी, छोटे की नहीं मानी जाती। दारों के अंदर देख लो, वो एक दारा कहता है कि हम दूध के दूल्हे, दूसरा कहता नहीं जी हम दूल्हे हैं। उनके रिपोर्टें निकाल दे, सारे करप्शन से लदे में। तो ये हमें आज सोचने की जरूरत है कि हम क्या करें। निशानियां भी देख ली हमने, पता है कि वक्त आ रहा है। और इधर क्या लिखा हुआ है कलाम में, इस वास्ते कि तुम आप खूब जानते हो कि खुदावंद का दिन इस तरह आने वाला है जिस तरह रात को चोर आता है। जिस वक्त लोग कहते होंगे कि सलामती और अमन है, उस वक्त उन पर इस तरह नाकाम हलाकत आएगी जिस तरह हमला को दर्द लगते हैं और वो हरगिज ना बचेंगे। मेरी माई पहले बैठी है, साइंस का स्टूडेंट होते हुए, बिब्लिकल स्टडीज का स्टूडेंट होते हुए, अब जो इसके अंदर बात की गई है कि हमला को दर्द लगते हैं, इसको बर्थ पेन्स भी कहते हैं, लेबर पेन्स भी कहते हैं आम लैंग्वेज में। मेडिकल के लोग बैठे हैं, ये ज़्यादा इस बारे में जानते हैं। लेकिन ये जो दर्द है, जब हमला औरत जो है हमल का वक्त आता है, तो ये दर्द होती है और ये लाजमी जो है होती है और उसका लाजमी होना भी जरूरी है। इसके अंदर हमें खुदा जो है कलाम के वसीले से भी बताना चाह रहा है कि मुसीबतें जो आनी है ना, ये आनी ही है, गुजरना ही है। ईमानदारों को इसमें से बच नहीं सकते, लेकिन एक कभी उम्मीद है दूसरे किनारे के ऊपर, चाहे इधर से हम निकल जाएंगे तुम्हारे लिए अब्दी बादशाह। यीशु मसीह ने जलाली बदन में आना, बादलों पे आना है, हमें ले जाए। आज भी गीत गा रहे थे, वाची उठ जा रहा है, यीशु ने जो तो आना। मैं इसलिए कह रहा था कि जो गीत और सबूत गाए जाते हैं, इनको दिल से जो है ना, इनके एक एक वर्ड को, एक एक मफहूम को निचोड़ के अपनी जिंदगियों में शामिल करें। हर चीज कहने का एक फर्क अंदाज होता है। कोई शायरी से जो है अपनी बात दूसरे तक पहुंचा देता है, कोई किसी लिखाई से, कोई सेंटेंस से, कोई स्टोरी से, कोई कहानी से, कोई दास्तान से बयान कर देते हैं। तो इसके अंदर भी खुदा का कलाम है, जो हम जब हम दो सना भी करते हैं, इसके अंदर भी मकसद है, एक मीनिंग है, एक मानी है। वो मानी भी जो है हम जब गाते हैं, बाकी हमको तारीफ करते हैं, तो वो अपने अंदर उसको जज्ब करें। अच्छा, अब ये हमारे पास जो दूसरी साइड पे हमारे पास क्या कभी उम्मीद है, हम किस तरह से तैयारी करके इन चीजों से बच के जा सकते हैं आगे, क्या करें। तो पहला तस्लीकिन 5वां बाब और इसके 5वीं आयत से मैं शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, हम ना रात के हैं ना तरीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, मगर हम जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें। ले जी, सेल्फ डिफेंस आ गया आपके पास, फॉर्मूला आ गया, कैसे बचना, क्या करना है, निशानियां भी आ गई, जंग हो गई, जो मर्जी हो जाए, ये आ गई चीजें।
बोर्डिंग कार्ड मिल जाना या टिकट मिल जानी है आगे जाने की। इन चीज़ों से घबराना नहीं है। ये जो इज़्ज़ात सानिया ना, इसको भी खुशी से सहना हमें सीखना होगा, क्योंकि जिसको हम मानते हैं उसने तो हमारे वास्ते मौत वारा कर ली, वो भी स्लीपर, और फिर फतेहमंद रहा और जी उठा, आसमान पर चढ़ गया। तो हमारे लिए अब जरूरी है कि हम ये जो चीजें जो उसने हमें दी हैं इसको अपने ऊपर आजमाएं, इसको अपने ऊपर लें। क्या चीजें हैं जी? ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहन करो शिआर। जो फौजी कहीं जाता है जंग करने या बॉर्डर पे जाते हैं तो उनकी पूरी एक यूनिफॉर्म इक्विप्ड होती है। वो बच्चे अभी वो संडे स्कूल का भी प्ले करते हैं, जब वो रूमी सिपाही बनते हैं तो अपनी चेस्ट के ऊपर चेस्ट प्लेट पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, कैप पहनते हैं, हाथ में वो तलवार सी लेके और एक बख्तर से लेके। बख्तर को शील्ड भी कहते हैं। वो शील्ड इसलिए होती है कि आपको जो हमलावर होता है और आपको हमला करना चाहता है तो आप उससे आप सेफ रह सकें, आप अपना डिफेंस कर सकें। तो अब आपने मुसीबतों में से गुजरना, लेकिन कभी उम्मीद है और ये चीजें आप कर लें, मगर हम जो दिन के हैं और ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद को खुद पहन कर होशियार है। होशियार भी रहना। तीसरी चीज, सोए ना रहे, दिन के फर्जंद है। क्यों? खुदा ने कहा कि मैं नूर हूं। तो किसके फर्जंद है? नूर के फर्जंद है कि तरीकी के? तो जो नूर के फर्जंद हो तो उनको जरूरत नहीं। ये चीजें हैं, अपना यूनिफॉर्म पहने, किट पहने, तैयारी करें, टाइम चोर की तरह आएगा दावन का दिन। सारे सोए होंगे, कोई पता नहीं होगा। अब तो घरों के अंदर वो बड़े जदीद वो सिक्योरिटी सिस्टम आ गए। मोशन डिटेक्टर में देख रहा था, मोशन डिटेक्टर है घर बिल्कुल बाहर, कोई चीज नहीं, सेंसर लगे हैं। कोई चीज किसी गुजर जाए वो अलार्म बजाना शुरू कर देते हैं, सेंसर लगे हैं। बल्कि किसी को चीज परिंदा आए, बिल्ली वगैरह गुजरे, वो एकदम शोर करने लगे, लाइट चल जाती है। ये चोर भी मान, ये इसके सेंसर नहीं है, ये नहीं निशानी है, ये निशानियां आ गई है, आपको दिख रही हैं। मानना बाप की मर्जी है, तैयारी अब आपने करनी है। ये चीजें भी बता रही है कि भाई ये आपका यूनिफॉर्म है, ये आपकी किट है। मुसीबतें होनी भी जरूरी है, दिन भी पूरे होने हैं जैसे। तो आज मेरे लिए और आपके लिए क्या जरूरी है, हमें क्या करना चाहिए? एक तो पहले हमने दुआ करनी है कि उनको सलामती का शहजादा है, उसके वसीले से सलामती और अमन कायम हो। जिन इलाकों में जंगो जदल है, जिन अदारों के अंदर जंगो जदल है, नाचाकी कदूरतें अपने अंदर जो हमारे अंदर है, कि खुदावंद इन कदूरतों को, इन गंदगियों को भी साफ करे और हम एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार के साथ मिल बांट के रहने की रुआ अता फरमाए, कि हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से बैठ सकें। आजकल की जिंदगी का पता, आजकल जिंदगी का कोई पता नहीं। आज शायद घर से मैं निकलूं, शायद घर ना पहुंचूं, कोई पता नहीं, लेकिन वो उसको पता है। शायद मैं घर से लड़के आया हूं और शाम में गाड़ी में पहुंचना, क्या करेंगे? ऊपर जाके जब अदालत का दिन होगा जवाब क्या देंगे कि मैंने बख्तर पहना था, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाया था, निजात की उम्मीद। निजात तो मिल गई है, नहीं वो मिली है जी, फ्री है ना, मिल गई। फजल का दौर है, जो मर्जी करे। फ्री के लिए भी जो है ना वो मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है, और मेहनत की कुंजी और सारा कुछ आपको निचोड़ के खुदावंद ने ये दे दिया। इसको रोज देखा करें, आईना समझ के देखा करें मेरी शक्ल सूरत किस तरह की है। क्या कहना चाह रहे खुदावंद मुझे इस्लाम के वसीले से? मोहब्बत के साथ एक दूसरे से रहें। अपने अंदर अगर अमन आप पैदा कर लेंगे तो कभी भी आप किसी के साथ जंग नहीं करेंगे। ये तो भी बड़े यूक्रेन और रशिया का मसला, बड़े लोग ये तो बदमाशी है ना, बड़ा मुल्क है, उसके पास रिसोर्सेज है, असल है, उसके पास कुछ भी कर सकता है। लेकिन आखिरी यहाँ की निशानियां तो यही है कि जी जंगल जदल होगा, कौमें पर चढ़ाई करेंगी। बैठे हुए थे ना, हफ्ता डेढ़ पहले तो आराम से बैठे थे, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 2-4 दिन पहले हो गया है, जिस दिन ये लड़ाई शुरू हुई है, तब तो नहीं कुछ हुआ। वो आए हैं तो उसी दिन वो शुरू हो गए।
तो यही फिर चीज़ें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो कलाम हम इधर से सीख के जाएंगे, ये तो एक अपने लिए अपने इंफरादी तौर पे भी इसको हम जज्ब करेंगे, और जो कुछ एक आधी चीज़ को सीख ली होगी तो दूसरों के साथ शेयर करें, कोई बताए उन्हें। और आज से संडे स्कूल आ गया, बड़ी खुशी की बात है, बच्चे वापस संडे स्कूल जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप सबसे मैं दरख्वास्त कर सकूँ, जितने इधर वालिदैन बैठे हैं, अपने बच्चों को संडे स्कूल लाजमी भेजा करें। संडे स्कूल बेसिक फाउंडेशन है। आप जो सब इधर बैठे हैं, आप भी संडे स्कूल से गुजर के आगे सीख के फिर इधर बैठे, क्योंकि बच्चों को अगर उन्हीं के लेवल, उन्हीं के हिसाब से चीज़ें समझाई जाएंगी तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होती है। और ये जो एज होती है ना 5 से 12 साल तक की, 13 साल तक की, इस एज के अंदर जो कुछ आप सीख लेते हैं, जज्ब कर लेते हैं ना अपने अंदर, आप फिर उसी तरह से चलते हैं आगे जिंदगी में। आपकी जो आपके फ्यूचर ईयर्स में आप वही उसी पे अमल करते हैं, वैसे मिलते हैं। तो बच्चों को संडे स्कूल आज में भेजा करें, और उम्मीद है कि जल्द ही कंफर्मेशन की क्लासेस का भी आगाज किया जाए, तो उसको भी अपने दुआओं में आप याद रखें। और आज का जो चैलेंज है, मैं अपने लिए और आप सबके लिए ये चैलेंज रखना चाहूँगा कि आए हम एक दूसरे से जो अदावतें हैं, जो नाराज़गी या नाचाकी है, इसे मिटाएं, मोहब्बत और ईमान से एक दूसरे के साथ रहें, और हमेशा खुदावंद का शुक्र करते रहें, और उसके कलाम को शुक्र करें कि उसने इतना शीरी कलाम हमें दिया, ताकि हम इसके ऊपर अमल करके अपनी अभी की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, और आखिरत में जब यीशु मसीह ने आना है तब तक हम ये अपना जो रिकॉर्ड है वो क्लियर कर लें। तो चाहूँगा कोई भी कलाम के लिए दुआ करें। हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरी तारीफ और तेरी सिफारिश करते हुए तेरे पाक कदमों में अपने सर को झुकाते और तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद आज के लिए खुदावंद तेरा शुक्र अदा करती हूँ, ऐसा के लिए तूने अपने बच्चे को, तूने अपने खादम को खुदावंद कसरत से इस्तेमाल किया है, और जो खुदावंद ने तूने तालीम दी और जो कुछ उन्होंने सीखा, उन्होंने आज तेरे कलाम की सच्चाई को हमारे तक बड़ी खूबसूरती से पहुँचाया है। हम इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद, तो अपने बच्चे को और बड़ी बरकत दे, और खुदावंद इसी तरह से अपने कलाम के गहरे में लेना चाहे, और दिन ब दिन तेरा बच्चा तेरी पहचान में, तेरी कुदरत में और तेरे जलाल में बढ़ता और तरक्की करता जाए। हम सबों के लिए खुदावंद जो कलाम हमने सुना है, हमारी राहों के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग है, हम इस पर अमल करें। और खुदावंद इन निशानियों को जब हमें मिल चुकी है और हम इन निशानियों को देख रहे हैं, तेरे पाक कलाम में लिखी हुई बातें पूरी हो रही हैं, तो खुदावंद हम इन निशानियों को देखते हुए ईमान और मोहब्बत का बख्तर पहनने वाले और नजात की उम्मीद रखते हुए उस खुद को अपने ऊपर ले लें, ताकि हम उस राह पर चल सकें जिसके लिए तूने हम सब के लिए बहुत बड़ा कफ़ारा दिया, और फिर मौत और कब्र पर फतह पाई, और तीसरे दिन लोगों में से ज़िंदा हो गया, ताकि हम बच जाएं, हम हलाकत से बच जाएं, हम बुरी रविशों से बच जाएं, हम अपने आप को ठीक कर सकें। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम में। आमीन।